کسٹم کلیکٹر خیبر پختونخوا اشفاق سے وزیرستان چیمبر آف کامرس کے صدر مقرب خان وزیر اور تاج محمد وزیر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جنوبی وزیرستان سے ہمارے بیورو چیف شاہ ولی خان جی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کے علاقے وانا میں پاک افغان انگور اڈا گیٹ ایک مصروف کاروباری و تجارتی زون ہے جہاں روزانہ کروڑوں روپے کی تجارت ہوتی ہے، مگر سہولیات نہ ہونے سے تجارت کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک کی دیگر سرحدوں کی طرح جیسا کہ چمن، ترخم اور غلام خان کی طرح یہاں سہولیات میسر نہیں ہے، اس لیے کسٹم کلیکٹر خیبر پختونخوا اشفاق سے وزیرستان چیمبر آف کامرس کے صدر مقرب خان وزیر اور تاج محمد وزیر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک افغان بارڈر انگور اڈا پر افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت، سڑکوں کی خراب صورتحال اور دوسرے اہم کاروباری مسائل پر بات چیت ہوئی۔ کسٹم کلیکٹر خیبر پختونخوا اشفاق نے ان تمام مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا اور پاک افغان بارڈر انگور اڈا پر کاروبار بڑھانے اور تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا وعدہ بھی کیا، جس پر وزیرستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مقرب خان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پاک افغان بارڈر انگور اڈا آنے کی دعوت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ موٹیاری سے ہمارے بیورو چیف رانا شمشاد علی کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ضلع موٹیاری کی سالانہ 2023 کے لیے الیکشن بٹائی پینل کے عہدیداران کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دے دیا گیا، جس میں رجب بزدار صدر، مشتاق احمد راؤ جنرل سیکرٹری، ذوالفقار میمن سینئر نائب صدر، وکیل احمد نائب صدر، علی قاسم جوائنٹ سیکرٹری اور فضل بلوچ کو فائنانس سیکرٹری منتخب کیا گیا، جبکہ محمد جمن چوہان، امتیاز علی آبلو، آصف راجپوت، سکندر ساہووال اور دشان علی آبلو کو ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ بھٹ شاہ کے ثقافتی مراکز میں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی عہدیداران کی ہدایت پر الیکشن کمیٹی کے چیئرمین غلام مجتبیٰ چوکھیوں نے بنا مقابلہ منتخب ہونے والے عہدیداروں کی کامیابی کا اعلان کیا۔ الیکشن بٹائی پینل کے سامنے کسی نے فارم جمع نہیں کروائے۔ اس موقع پر بھٹ شاہ، موٹیاری، اڈیرو، لال، نیو، سعید آباد اور کھنڈوں کے جرنلسٹ بڑی تعداد میں موجود تھے، جنہوں نے نئے منتخب عہدیداروں کو پھولوں کے ہار پہنا کر اور اجرک کے تحفے پیش کر کے مبارکباد دی۔ سینئر جرنلسٹ حافظ امتیاز چنا، بابو جی ایم خاص کھیلی، نوشاد علی بگیو، عبد القیوم راجپوت، رانا شمشاد راجپوت، فدا حسین سولنگی، عبد الغفور انگورو، ریاض چانڈیو، حضور بخش ملا اور دیگر بھی موجود تھے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے، خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ کی تحصیل پسرور سبز پیر پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ 30 سالہ تنویر کو سر میں گولی مار کر قتل کرنے والا اس کا اپنا قریبی عزیز ہمسایہ نکلا۔ پسرور 30 سالہ نوجوان کے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا گیا۔ تھانہ سبز پیر کے علاقہ گنور میں 30 سالہ تنویر کا قاتل مبینہ قریبی عزیز ہمسایہ نکلا۔ تھانہ سبز پیر پولیس نے ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گرفتار کر لیا۔ ملزم علی سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے، خبر جو کہیں خواہش ہے،
कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए कल्लात से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रक्षा रेंज नजीर अहमद करदू एसपी नोशकी अब्दुल रऊफ बड़ैच की जानिब से सानिया पिशावर व सानिया नोशकी एफसी के शोहदा के लिए कुरान खानी व दुआया तकरीब और लंगर तकसीम किया गया। तकरीब में पुलिस अफसरान व नौजवान और आम आवाम व मोहतबरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर पिशावर खुदकश धमाका में शहीद होने वाले एहलकारों व सानहा नोशकी एफसी के असाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई, जिसके बाद शोहदा की मागफिरत और जख्मी एहलकारों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। तकरीब से खिताब करते हुए डीआईजी व एसपी और दीगर का कहना था कि इस्लाम में एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। सानिया पिशावर की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हम सबको मुत्तहिद होकर इलाके और मुल्क में अमन व अमान कायम करना होगा। पिशावर पुलिस लाइन में पुलिस फोर्स के जवानों पर खुदकश हमले की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकश हमला इस्लाम व इंसानियत के खिलाफ घिनौनी साजिश है। इस्लाम का नाम लेकर अवाम की हिफाजत के जिम्मेदार मुसलमानों पर खुदकश हमला करके दहशतगर्दों ने इंसानियत की धज्जियां उड़ाई हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग होने पर वो मासूम नमाजियों पर खुदकश हमला कर रहे हैं। आज पूरी पाकिस्तानी कौम शोहदाए पिशावर के सोग और गम में बराबर की शरीक है। दहशतगर्द मुसलमान व इंसान कहलाने के हरगिज हकदार नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है। मुल्क मजीद दहशतगर्दी का हरगिज मोहतमल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कौम इत्तेहाद व इत्तफाक से दहशतगर्दों को शिकस्त से दोचार कर देगी। कोर्ट अद्दू से हमारे ब्यूरो चीफ शेख जफर इकबाल बबलू की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू अदालत के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी चंद टिकटों की खातिर अवाम की जिंदगी दाव पर लगाने वाले महकमा मौलियात के अफसरान ने दायरा दीन पनाह म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में नए इंटों के भट्ठे खश्त लगाने की इजाजत दे दी। जिला इंतजामिया कोर्ट अद्दू और असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अद्दू की नाअहली शहरियों के बारहा एहतजाज के बावजूद नया भट्ठा खश्त गुंजान आबादी में तामीर कर दिया गया। बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि महकमा मौलियात और जिला इंतजामिया को लाखों रुपए देकर खरीद लिया गया। ऐलान इलाका शहरियों ने एहतजाज बुलंद करते हुए गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान, डायरेक्टर मौलियात डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। पाँच फरवरी योम यकजहती कश्मीर के दिन पूरे अक़वाम आलम को बेदार होना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद से सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की अपील। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम और बेबस कश्मीरियों पर जो जुल्म भारत की तरफ से 24 घंटे किया जा रहा है, पूरे अक़वाम आलम को बेदार होना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों का हक दिलाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भरपूर तरीके से कश्मीर का मसला उजागर करे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने आज़ाद पाकिस्तान की सहाफ़त पर भी जोर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट सबको कश्मीर की आवाज को उठाएं और अक़वाम आलम को बेदार करने की कोशिश करें। खुदा के लिए जो आए रोज भारत की तरफ से जुल्म हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों के लिए कोई कानून नहीं है। मैं तमाम कश्मीरी सियासी, समाजी, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया से अपील करता हूं, कश्मीर के मसले पर सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक अपील जनाब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, कमिश्नर साहब साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहब साहिवाल, सीईओ साहब, डीईओ साहब एजुकेशन साहिवाल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नूर शाह का हिस्सा हायर विंग जो सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल है, जो बच्चियों की तादाद के मुताबिक ना होने के बराबर है। बच्चियों की तादाद 700 से भी ज्यादा है और कमरे सिर्फ 4 हैं। पहले शदीद सर्दी, शदीद धुंध में बाहर खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर थी, अब
गर्मी आ रही है, हमारी आला काम कमिश्नर साहब साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहब साहिवाल और सीईओ डीईओ साहब एजुकेशन से पुरजोर अपील है, बच्चियों पर रहम फरमाए, बच्चियों के लिए बिल्डिंग का जो ख्वाब है वो पूरा करें। एक बिल्डिंग ना होने का जुल्म, दूसरा बच्चियों के साथ जुल्म के इम्तिहान का सेंटर भी लड़कों के साथ बनाया जाता है, जहां लड़कियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तालीमी फंड तालीमी मकासद के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए, ना कि अपनी अय्याशियों के लिए। अहले इलाका और बच्चियों के वालिदैन की पुरजोर अपील है कि बच्चियों का बुनियादी हक बिल्डिंग की सूरत में हर हाल में दिया जाए। कोटअदू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शबीर अहमद की जानिब से नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। सुनानवा और गिरदोनवा में यूरिया खाद ब्लैक में बेचने वालों के खिलाफ जुर्माने किए गए। सुनानवा रफीक बरादर नामी खाद माफिया को 3100 रुपए फी बोरी ब्लैक पे बेचने पर 20,000 रुपए तक जुर्माने किए गए। उसामा ट्रेडर्स 2900 यूरिया ब्लैक पर फरोख्त करने पर 25,000 रुपए तक जुर्माने किए गए। नाजायज मुनाफाखोर माफिया को किसी किस्म की रियायत न बरती जाएगी। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेयर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में दौरान ड्यूटी फायरिंग से जख्मी होने वाले एहलकार की अयादत की। ड्राइवर कांस्टेबल की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बेहतरीन ट्रीटमेंट के लिए मुतलका अकाम को हिदायत जारी की। गुज़िश्ता रात थाना सिविल लाइन के इलाका में अमनो अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए पुलिस वैन रूटीन गश्त पर थी कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस वैन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ड्राइवर कांस्टेबल गोली लगने से जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट मुंतकिल किया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए जियो फेंसिंग और तमाम किस्म की जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जा रहा है। इस सिलसिले में स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस टीमें इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। इंशाअल्लाह जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईजी साहब के अहकामात के मुताबिक तमाम मुलाजमान को हिदायत जारी की गई कि दौरान ड्यूटी बेल्ट प्रूफ जैकेट्स लाजमी इस्तेमाल करें। सियालकोट पुलिस अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए हमा वक्त कोशा है। बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर नायब सदर एपका पाकिस्तान व मरकजी सदर आल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन पाकिस्तान की क़ियादत में ज़िलई रहनुमाओं महबूब नाजिश राव अब्दुल कयूम इशफाक भट्टी चौधरी मकसूद अताउर रहमान बलोच राना अब्दुल वहीद शेख जवाद सजाद कयूम खिची फयाज जोया कादिर मोहम्मद यासीन तारिक लीडर राशिद शाह और दीगर रहनुमाओं के हमरा तहफ़्फ़ुज़ नामूस कुरान पाक के सिलसिला में एक रैली निकाली गई, जिसमें स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन की हुकूमत की मजम्मत की गई और हुर्मत कुरान पाक पर जानों के नजराने देने का अहद किया गया। रैली रफीक शाह चौक से शुरू होकर सिटी चौक में इख्तिताम पज़ीर हुई। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट रेस्क्यू 1112 ने साल के पहले महीने में 2236 एमरजेंसी कॉल्स पर बर वक्त कार्रवाई करके 1880 लोगों की जिंदगियां बचाई। इंजीनियर नवीद इकबाल रेस्क्यू 1112 सियालकोट ने जनवरी की रिपोर्ट पेश कर दी। 12,236 एमरजेंसी कॉल्स पर बर वक्त कार्रवाई करके 1880 लोगों की जिंदगियां बचाई। माह जनवरी में रेस्क्यू ने 2,236 एमरजेंसी कॉल्स पर बर वक्त कार्रवाई करके 1880 लोगों की जिंदगियां बचाई। रेस्क्यू मीडिया तर्जमान सियालकोट के मुताबिक सेंट्रल रेस्क्यू 1112 स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में माहाना कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनकिद हुआ। इजलास में तमाम विंग और स्टेशन इंचार्जेस
शामिल थे इमरजेंसी ऑफिसर इरफान याकूब ने माहाना कारकर्दगी का मुख्तसर जायजा पेश करते हुए बताया कि रेस्क्यू कंट्रोल को 16,460 फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें से 12,236 इमरजेंसी कॉल थी, जबकि तमाम बाकी बोगस और गैर जरूरी कॉल थी। इमरजेंसी कॉल में 660 सड़क के हादसात, 73 आग लगने के वाकयात, 55 क्राइम इमरजेंसीज, 1218 मेडिकल इमरजेंसीज और 230 रेस्क्यू ऑपरेशन जिनमें जानवरों को रेस्क्यू करना शामिल है। कॉल्स मौसूल हुई। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करके 2044 मरीजों में से 431 मरीजों को मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की। 1449 मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करने के बाद जिंदा अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 164 मरीज अस्पताल मुंतकिल के दौरान या जाए हादसा पर इंतकाल कर गए। रेस्क्यू 1112 ने मरीज मुंतकली सर्विस के तहत 20 लोगों को एडवांस तिब्बी सहूलियात के लिए लाहौर मुंतकिल किया। रेस्क्यू 1112 ने कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 6 तरबीती सेशन में 85 लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद और आग से बचने की तरबियत फराहम की। रेस्क्यूज ने मुआवजीन जिले इंतजामिया के साथ मिलकर जिला भर में जारी पोलियो मुहिम में भी हिस्सा लिया और लारी अड्डा के मुख्तलिफ मकामात, दोबरजी और सबलाइम चौक पर मुसाफिरों के साथ जाने वाले 5 साल से कम उम्र के 1569 बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिलाए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने कारकर्दगी को सराहा और हिदायत जारी करते हुए कहा कि इसी तरह जोशो जज्बा के साथ अवामुन नास की खिदमत में सरशार रहे। डेरा मुराद जमाली से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जान कटवार की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आज उस्मानिया पब्लिक स्कूल डेरा मुराद जमाली में स्पोर्ट्स मेला की निस्बत से मुख्तलिफ खेलों में नुमाया पोजीशन और साहमाही इम्तिहानात में पोजीशन लेने वाले तुलबा के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास काबिल एहतराम प्रोफेसर सैयद हुसैन अली शाह साहब डिवीजन मॉनिटरिंग ऑफिसर कॉलेजेस थे। एजाजी मेहमानों में मोहतरम जनाब गुल मोहम्मद मस्तोई साहब सदर ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन नसीराबाद, प्रोफेसर अब्दुल फता आबड़ू साहब थे। इसके अलावा वालिदैन और दीगर मेहमानों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। काइविट्स के दस्ते ने मेहमान खास व दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल करीम नेचारी ने मेहमान खास को अजरक का तोहफा पेश किया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसके अलावा तुलबा ने हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को मुनव्वर किया। प्रोग्राम में तुलबा ने खेलों की अहमियत और दीगर मौज़ूआत पे मुख्तलिफ तकारीर पेश की। मेहमान खास हुसैन अली शाह साहब, गुल मोहम्मद मस्तोई साहब, प्रोफेसर अब्दुल फता आबड़ू, स्कूल के डायरेक्टर कमर अंजम नेचारी, प्रिंसिपल मोहम्मद आजम मेंगल, वाइस प्रिंसिपल नसीब उल्लाह बेचूबा साहब ने बच्चों को असूल इल्म के साथ साथ खेलों की अफादियत के मुतल्लिक आगाही दी। सामाई इम्तिहानात के साथ स्पोर्ट्स मेला रखने का मकसद बच्चों में खेलों की अफादियत उजागर करना था। एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग परवरिश पाता है। स्टेज सेक्रेटरी के फराइज इमरान अली मेंगल और मोहम्मद अब्दुल्ला सासोली साहब ने सर अंजाम दिए। आखिर में सामाई इम्तिहान और खेलों के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। इलावा अजी मेहमान खास ने स्कूल के बहुत ही सीनियर टीचर सर शराफत अली डोमकी साहब को बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कद्दूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना आबपारा में मुकदमा नंबर 94/23 दर्ज कर दिया गया। वादिया रहे शेख रशीद अहमद के खिलाफ मुकदमा नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन राजा अनायतुर रहमान की मुद्दत में दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मौके पर साबिका वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का क्या कहना है, जानते हैं हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कद्दूस जामी की इस रिपोर्ट में। और मेरे साथ ज्यादती की है। चलो बैठ पर
और इन्होंने जुल्म किया, नहीं दे यार, इन्होंने जुल्म किया, ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है, ये मसला थे 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर को छोड़ो जी, ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए हैं। और आज ही जस्टिस क्या नाम था उनका, ताहिर औरंगजेब साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, नहीं मियां ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो और ये SHO ये शोकाज भी उन्होंने नोटिस का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया है यहाँ। राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला आपकी फतह होगी इमरान खान के साथ। थैंक यू सर। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर से कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयान, कहीं सनसनी और कहीं अफवाह का खेल, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और क्या सबसे पहले खबर की तह में छुपा है कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, चंद टिकटों की खातिर अवाम की जिंदगी दाव पर लगाने वाले महकमा माहौलियात के करप्ट अफसरान ने दायरा दीन पनाह में नए भट्ठे लगाने की इजाजत दे दी। DC कोट अद्दू और असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू की नाअहली अवाम के बारहा एहतजाज के बावजूद नया भट्ठा तामीर करवा दिया गया। जराये के मुताबिक महकमा माहौलियात और जिला इंतजामिया को लाखों रुपए देकर खरीद लिया गया। अवाम ने एहतजाज भी किए लेकिन भट्ठा मालिक ने कहा कि एहतजाज का असर पैसा खत्म कर देता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब, DG इन्वायरमेंट और दीगर आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। वजीरिस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तानी वुज़रा के इल्जामात मुस्तरद करते हुए जवाब दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान से। जी अपडेट कीजिएगा। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तानी वुज़रा के अफगानिस्तान पर इल्ज़ामात के रद्द अमल में कहा है कि हम मशवरा देते हैं कि पेशावर धमाके के तहकीकात करे कि किस तरह एक खुदकश जैकेट इतने बड़े पैमाने पर तबाही करके इमारत गिरा सकता है। हमने 20 साल में ऐसा बम नहीं देखा जो जैकेट में बांधकर इतना नुकसान कर सकते हैं। पाकिस्तान लमुहतरम वज़ीर साहिबानो न हम हिल को सिद खपल बाम वावरी दी बल चा बाम न वराची खपल मुश्किलात पे खपल कोर की उगोरी मुगदा मशवरा और को सिद पेखवर दी चावदनी दकीका पलटन वकई दा सिमा ल जंग व बारूतो ल चावदन सर बलद दा हिच इम्कान न लरी यो जान मर गई या यो वास्कट या यो वड़ुकई बम या यो बोशका दी दुमरा गट तखरीब की लिहाजा पतीरो शलो कलो की मुगदासी ओ बम वनल निम उदासी वास्कट वली चागद दी मस्जिद चतुनम वालू जियागद दी फसून नो इंसानान हम लजान सरवालू जी नो लिहाजा दे बाय दकीका पख्तन वसी दे बाय दकीका पलटन वसी अफगानिस्तान दी प्लेग वतन ने वलकी कचो कोई च अफगानिस्तान दे तरहगरी मरकज दे पे इस्तिला नो खुतवा से तरहगरी बया सरहदम न लरी नो तरहगरी पे अफगानिस्तान की वाई बया बदा तरहगरी चीन तम गजेदला दा ताजिकिस्तान तम गजेदला दा उज्बेकिस्तान तम गजेदला दा तुर्कमेनिस्तान तम गजेदला दा ईरान तम गजेदला
نن چې هغه ټول په امن دي خپل افغانستان هم په امن ده نو معلومه شو چې دلته دا خبره نسته لہذا یو له بل سره باید همکاري وکړو یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو یو په بل باندې تورونه ونه لګوو یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شیندو دا دواړه مسلمان هیوادونه مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي یو له بل ضلع باغ سے ہمارے سینئر کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ اکادمی کی رپورٹ کے مطابق لائن مین مبارکباد پیش کرتا ہوں افتخار رشید چغتائی وائس چیئرمین لوکل گورنمنٹ آزاد کشمیر افتخار رشید چغتائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مرکز ملوث اور گرد و نواح میں سخت برف باری اور شدید موسم کے باوجود محکمہ برقیات کے لائن مین محمد اقبال اور محمد عمر مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے کے اندر باغ میں سب سے پہلے اپنے علاقے کی بجلی بحال کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ان کی شدید موسم میں دن رات محنت پر محکمہ برقیات اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے تعریفی اسناد کی سفارش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر سیالکوٹ سے ہماری بیورو چیف سیدہ فرحت رضوی کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر کا EHQ ہسپتال سمڑیال کا اچانک دورہ صوبائی وزیر نے ایمرجنسی میڈیکل اور فارمیسی میں دستیاب ادویات کا ریکارڈ چیک کیا ریکارڈ میں بے قاعدگی پر برہمی کا اظہار کیا اس کے علاوہ صفائی کی صورتحال اور مریضوں سے طبی سہولیات سے متعلق دریافت کیا ڈاکٹرز اور عملہ سے بھی گفتگو کی صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا ہیلتھ فیسلٹیز میں خود جا کر کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہوں Do you know that hair fall is a sign of weak roots? For deep strengthening treatment, there's Pantene 3-Minute Miracle. See how its precision blended Pro-V formula goes into each strand and strengthens from the root all the way to the tip in just 3 minutes. The result? Less hair fall. Time to prove it yourself. 3-Minute Miracle Treatment, only from Pantene. جنگ سے ہمارے بیورو چیف محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس افیسر فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کی شہید اخلاق الحسن کے گھر آمد DPO جنگ محمد راشد ہدایت کے ہمراہ شہید کی فیملی سے ملاقات کی اور شہید کے درجات بلندی کے لیے فاتحہ خوانی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس افیسر فیصل آباد نے DPO جنگ کے ہمراہ شہید اخلاق الحسن کے گھر شک نمبر 254 جیم بیس سعید آباد میں شہید کی فیملی سے ملاقات کی شہید کی درجات بلندی کے لیے فاتحہ خوانی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اس موقع پر DSP صدر سرکل تنویر امجد SHO موچیاں والا مزمل حیات بھی RPO فیصل آباد کے ہمراہ موجود تھے شہید اخلاق الحسن تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن تعینات تھے اور اسلام آباد میں اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے دوران فائرنگ سے جامع شہادت نوش فرما گئے شہید کانسٹیبل کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر RPO فیصل آباد نے شہید کی قربانی کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا RPO فیصل آباد کا کہنا تھا کہ شہدائے پولیس ہمارا سرمایہ اور فخر ہے شہداء کی جرأت بہادری اور قربانیاں پولیس فورس کے لیے مشعل راہ ہیں شہریوں کی جان و مال عزت و آبرو اور قیام امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے میں ان شہداء کے والدین اور بچوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جن کے پیاروں نے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا RPO فیصل آباد کا مزید کہنا تھا شہید کی فیملی ہماری اپنی فیملی ہے شہداء کی فیملیز کی بہترین ویلفیئر ہماری اولین ترجیح ہے ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے خبر جو کہیں خواہش ہے کہیں مرضی کا بیانیہ کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر تحقیق کے ساتھ جستجو کے ساتھ
क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। पटक्का से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक सब डिवीजन पटक्का में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। नामालूम चोर रात की तारीकी में डॉक्टर तुफैल उस्मानी शहजाद उस्मानी के घर में घुस गए। 20 तोले सोना, 60,000 कैश रकम व दीगर कीमती सामान लेकर फरार। नामालूम चोरों के खिलाफ चौकी पुलिस पटक्का में रिपोर्ट दर्ज है। वाकया बुध की रात पेश आया, लेकिन अभी तक चौकी पुलिस पटक्का ने चोरों को नहीं पकड़ा। अवामी इलाका ने और पटक्का के ताजरों ने मुतालबा किया है कि अगर फौरी तौर पर चोरों को गिरफ्तार न किया गया, हम गैर महफूज हैं। इसलिए SSP मुजफ्फराबाद, DIG मुजफ्फराबाद और IG आज़ाद कश्मीर से फौरी तौर पर DSP पटक्का को हुक्म सादिर फरमाएंगे, ताकि हमारे कारोबार महफूज रह सकें और घर, जो कि हम सादालू इंसान हैं, घर की तरह हमारे घर नहीं है, कहाँ पर गांव है और कहाँ गांव जैसा माहौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। ओस्का मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सूबाई सदर मीर चंगेज खान जमाली की अंजवानी हाउस ओस्ता मोहम्मद आमद मीर रियाज खान अंजवानी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश की और खैर थर किनाल में पानी की कमी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर शान, साकिब, आबड़ू, विजय कुमार और बाबे अंजवानी भी मौजूद थे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद से भरी गाड़ी आटे की बरार कोट चौकी पर जब्त कर ली गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मीर मुश्ताक अहमद सब इंस्पेक्टर चौकी ऑफिसर बरार कोट ने हमा टीम आटे की बैरून आजाद कश्मीर मुंतकली पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर आटे की थैलियों से भरी टोयोटा पिकअप गाड़ी जब्त करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में मुजफ्फराबाद तहसील पटक्का के गांव अरलिया का रिहायशी मोहम्मद सदीक मजदूर कत्ल। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी 3 कत्ल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि कश्मीर की बिजली, पानी, लकड़ी, जड़ी बूटियां वगैरह कश्मीर के इस्तेमाल करते हैं। इधर कश्मीरी अवाम की जान की कोई कीमत नहीं। अवाम का कहना है कि अगर इसी तरह किसी पाकिस्तानी का कत्ल कश्मीर में हुआ होता, पूरे पाकिस्तान में कश्मीरी अवाम और हुकूमत आजाद कश्मीर पर दबाव डाला जाता। लिहाजा हमारी इस्तदा है कि साफ शफाफ तहकीकात अमल में लाई।
मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस और वली मोहम्मद के मकानात जल कर खाक, लाखों रुपए का सामान और माल जल कर खाकस्तर हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। नीलम की आवाम ने चैनल 5 न्यूज प्लस से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक माह में नीलम के कई गाँव में आवाम खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। मकान जलने की वजह से आए रोज किसी न किसी का मकान शॉर्ट सर्किट की वजह से जल कर खाकस्तर हो जाता है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। खुदारा आवाम पर रहम करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते रुख करते हैं शुजाबाद का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद अब्दुल बासी सदीकी की हिदायत पर दूसरे रोज भी चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ हमरा इन्फोर्समेंट टीम तजावजात के खात्मे के लिए सरगर्म में अमल। हुकूमती हिदायत के मुताबिक शहर में तजावजात कायम करने वाले दुकानदारान के खिलाफ कार्रवाइयां, भारी जुर्माने आयद किए गए। पुराना मुल्तान रोड, अल्लाहू चौक, खोखरा अड्डा पर कायम तजावजात का खात्मा करवाया गया। दुकानात के सामने लगे पर्दा जात को उतरवाया गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से खसूसी टास्क दिया हुआ है। तजावजात कायम करने वालों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज भी कार्रवाइयां की गई थी। जिन दुकानदारान का सामान दुकान से बाहर था, जो कि अवामुन्नास के गुजरने में शदीद दुश्वारी का बाइस था, सामान को जब्त कर लिया गया और मौका पर जुर्माने भी आयद किए गए। तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी और सारी रहेगा। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शोएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीगेशन एम्पायर्स एसोसिएशन खेरथर कैनाल के 9 मुंतखब सदर महबूब अली तरीन और जनरल सेक्रेटरी कुर्बान अली जमाली को चेयरमैन जनाब प्रेस क्लब एहसान करीम इमरानी, अमजद अली जमाली, शोएब अहमद जमाली फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए सियालकोट से हमारे नुमाइंदा अम्मार मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बार फिर वो मिसाल कायम कर दी। माल मुफ्त, दिल बेरहम आवाम की सहूलत के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट सियालकोट दफ्तर लाखों रुपए से तैयार किया गया, लेकिन 11 बजे तक कोई मुलाजिम दफ्तर न पहुंचा। दफ्तर में आने वाले साइलिन जलीलों को डीसीओ सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्याजी से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। कोटअद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटअद्दू जिला इंतजामिया की नाकद पॉलिसी आटे का बोरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गरीब खवातीन और दिहाड़ीदार मर्द हजरात लाइनों में जलीलों को हार होने लगे। आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। डीसी कोटअद्दू के इख्तियार फोर्ड इंस्पेक्टर जिया गोंदल इस्तेमाल करने लगा। सरकारी पॉइंट्स के बावजूद मनपसंद और सिफारिशी अफराद को कोटे जारी कर दिए गए। दुकानों में जाने वाला आटा ब्लैक में फरोख्त किया जाने लगा। फूड इंस्पेक्टर जिया गोंदल और मिल मालकान का गठजोड़ नाकस आटा, कम पैकिंग और सरकारी आटे के कोटा में रद्दोबदल करके रोजाना लाखों की करप्शन की जाने लगी। आवाम का आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा।
सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर थाना मकड़वाल मियांवाली पहुंच गए। आईजी पंजाब ने दहशतगर्दों की फायरिंग के बावजूद डट कर मुकाबला करने पर एसएचओ थाना मकड़वाल मलक फयाज को शाबाश दी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस एहलकारों के लिए 25 लाख रुपए जबकि एसएचओ को 5-5 लाख रुपए नकद इनाम दे दिया। साहिवाल से हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक लासानी जरिए मरकज अड्डा खैर वाला छठा मील लंदन रोड बुरे वाला का इफ्तिताह बदस्त जनाब इम्तियाज अहमद खान जोया साहब तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर बुरे वाला मियाँ जोहेब खान सलधेरा साहब मियाँ मोहम्मद मनसब जोया साहब मौलाना मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब चेयरमैन कुरान व सना मूवमेंट जिला व्याड़ी रस्म इफ्तिताह के बाद इफ्तिताही तकरीब का आगाज हुआ। कंपेयरिंग के फराइज मोहम्मद मनसब जोया साहब ने अदा की। इफ्तिताही तकरीब का आगाज कारी मदर साहब की तिलावत कलाम पाक से हुआ। अमदोनाद मौलाना नाज़ मकानी साहब ने पढ़ी। इस तकरीब में खुसूसी खताब मोहम्मद इम्तियाज खान जोया साहब तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर बुए वाला ने किया। इस तकरीब में खुसूसी शिरकत मियाँ खुर्शीद अहमद शाहिद जोया साहब, मियाँ मोहम्मद उमर जोया साहब, कमर जमान खान सलधेरा साहब, चौधरी मुनीर अहमद सारन क्राफ्ट साइंसेज, अब्दुल मजीद CEO मुहिब एग्रो केमिकल्स चौधरी अब्दुल्ला दानी साहब, मौलाना मुश्ताक फानी साहब, सजाद अहमद डोल्फन एग्रो केमिकल चौधरी मोहम्मद सलीम गला मंडी बुरे वाला, राशिद महमूद गला मंडी बुरे वाला, चौधरी लियाकत अब्दुल सत्तार, राना मोहम्मद अफजल, हाफिज अफजल राना, मोहम्मद जमान जोया, रायविन और दीगर जमींदारों और कारोबारी लोगों ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर सानी सेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और लासानी न्यूज HD के डायरेक्टर जावेद महमूद जोया के लासानी ज़रई मरकज के लिए दुआए खैर मौलाना मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब ने करवाई। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक मार मोहम्मद आकब पथुराना वाल्द मार अकनिवाज पथुराना सियाल जो के बाकाज़ाए इला इंतकाल कर गए थे, इनकी नमाज जनाजा ईदगाह गोजरा रोड में अदा की गई। मरहूम के काफी दोस्त अहबाब अजीजों अकारब सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। एक नौजवान नस्ल को सबक दे गया, हर बंदे की आंख में अश्क बार थे, उनके आबाई कब्रिस्तान में तदफीन किए गए, कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। अल्लाह पाक इस मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और वालिदैन अजीजों अकारब को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बहावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर अरसलान बशीर और मोहम्मद नदीम तहसीलदार ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर बहावल नगर में मुनकीदा रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की, जिसमें मुतलका रिवेन्यू ऑफिसरान और रिवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रिवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट्स और साइलिन की रिवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल हल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर ने कहा कि हुकूमत रिवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इकदाम कर रही है। रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रिवेन्यू से मुतालिक दरखास्तें भी मौसूल की गयी और उनके मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकामात भी जारी किए गए। रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी तमाम तहसीलों में भी मुनकिद की गयी, जहाँ मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर नदीम तहसीलदार ने लोगों के रिवेन्यू से मुतालिक मसाइल भी हल किए। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी और डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलव्वस खतरनाक गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद, मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने
जुराइम की भी कनी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जिला भर में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर रखे हैं। इस सिलसिला में DSP सिटी की सरबराही में SHO थाना कैंट ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए दौरान चोरी और डकैती की मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक जहांगीर और चांद गैंग के सुरगुना समेत 4 मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जा से नकदी 2,75,000 रुपए, 4 अदद मोटरसाइकिल, 6 अदद मोबाइल फोन्स और 4 अदद पिस्टल मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने पुलिस टीमों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात का ऐलान भी किया है। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरद रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने इमरान अदरीस अस्पताल और इस्लाम अस्पताल, इस्लाम मेडिकल कॉलेज और ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट के साथ MOU साइन किए हैं, जिसके तहत पुलिस को इन अस्पतालों और तालीमी अदारों में डिस्काउंट दिया जाएगा। अस्पतालों में 50% तक डिस्काउंट होगा। जिस तरह IG साहब के अहकामात की रोशनी में पहले तालीमी इदारों के साथ MOU साइन हुए हैं, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए DPO सरगोदा ने ये MOU साइन किए हैं। पुलिस मुलाजमान के मेडिकल और तालीमी मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जिसके लिए इंचार्ज वेलफेयर ब्रांच को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा शारिक कमाल सदीकी का सरगोदा रीजन के जिलाई पुलिस ऑफिसरान के साथ वीडियो लिंक इजलास। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा शारिक कमाल सदीकी ने सरगोदा रीजन के जिलाई पुलिस ऑफिसरान के साथ तारफी मीटिंग की और इनसे मुतलका इजला में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। इस दौरान दहशत गर्दी की हालिया लहर के पेश नजर RPO सरगोदा ने सरगोदा रीजन के तमाम इजला की असास मसाजिद, इमाम बारगाहों, गिरजाघरों, पुलिस लाइन्स और असास तनसीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। RPO सरगोदा ने जेर तफ्तीश डकैती, राबरी, कत्ल के मुकदमात का जायजा लिया और हिदायत जारी करते हुए कहा कि जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों में तेजी लाएं, जेर तफ्तीश संगीन मुकदमात को जल्द मेरिट पर यकसू करें और मुकदमात में मुलवस मुलजिमान और इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार करें। अगवा, रेप और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर हल करें। रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा शारिक कमाल सदीकी ने मजीद कहा कि तमाम जिलाई पुलिस ऑफिसरान अपने जिला में कबंग ऑपरेशन करें, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी, जुआ के अड्डों और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी की मुहिम चलाई जा रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां यकीनी बनाएं। 15 की कॉल्स पर फौरी कार्रवाई करें ताकि लोगों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाया जा सके। अवाम के साथ कुछ इखलाकी से पेश आए और शहरियों की बर वक्त दाद रसी के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। तमाम जिलाई पुलिस ऑफिसरान, पुलिस शोधा की फैमिलीज का खास ख्याल रखें। इस वीडियो लिंक मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा मोहम्मद तारिक अजीज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब असदुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियां वाली मोहम्मद नवीद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल और ADIG आमिर मुश्ताक ने शिरकत की। कुछ वजूहात की बिना पर हम नूर अहमद शाहवानी को अपने इंसाफ मीडिया सेंटर नसीराबाद के ओहदे और काबीना से फारिग करते हैं। आज के बाद नूर अहमद शाहवानी का इंसाफ मीडिया सेंटर नसीराबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी अपना लेन देन रखेगा, इसका अपना चैनल है या अखबार, वही इदारा जिम्मेदार होगा। बाहुकम सदर इंसाफ मीडिया सेंटर नसीराबाद तारिक जान कटवार, ब्यूरो चीफ, चैनल 5 न्यूज प्लस। कोटअद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज दायरा दीन पनाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अवाम ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली, जिसकी क़ियादत अब्दुल रज़ाक खान कलाची ने की। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम।
जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ रेंज कुटला कंपार्ट नंबर 10 और नका के मकाम पर। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और मुझे कुछ शवायद मिले थे जिसकी वजह से मैंने बर्फ में यहाँ पे आके और मैंने पूरी तहकीकात की और मैंने सर्वे किए। उसके बाद मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है। यहाँ का ये जंगलात है, ये दरअसल जंगलात नहीं है, ये क्लोजर है और क्लोजर को सरेआम कटवा कर लोगों के हाथों खुद फॉरेस्टर गार्ड और वाचर अपने जेबों में उसका पैसा डालते हैं और अपने जेब गर्म करते हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक इस तरफ के ऊपर रहते हैं, पैनम जगह का नाम है, वहाँ के चौधरी बलादर जितने भी हैं उन्होंने अभी मुझे कहा है। और एक तरफ सदात रहती है, गंजमार जगह का नाम है, उन्होंने कहा है। और यहाँ के नवार बलादर है, उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पर ये रात दिन इसी तरह से ये कारोबार चल रहा है और जंगलात वाले कटवा कर गाड़ियों पे लोड करके दूसरी जगह पे फरोख्त करते हैं। ना कि हमें अगर हम इसके ऊपर कोई बात करने की कोशिश करते हैं, एनी शाहिदीन का कहना है कि हमारे ऊपर उल्टा पर्द काट देते हैं। तो इसका फौरी एक्शन वज़ीर जंगलात, चीफ सेक्रेटरी जंगलात, DFO चीफ इंस्पेक्टर जंगलात को लेना चाहिए और ऐसे मुलाजमीन को बरतरफ करना चाहिए और इनकी जगह ऐसे बाकिरदार, बाहिम्मत और बाईमान मुलाजमीन को तैनात करना चाहिए ताकि हमारे जंगल सफेद होने से बच सकें। 5+ न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर सैयद बनियाद हुसैन शाह काज़मी, कोड़े नक्का, कंपार्ट नंबर 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। जनूबी वजीरिस्तान लोयर में बिजली की नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ आम लोग समेत कबायली उमायदीन सड़कों पर सरापा एहतजाज हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान लोयर वाना में बिजली की 22 घंटे नारवा लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबार कर दिया। आम लोगों समेत कबायली उमायदीन सड़कों पर निकल आए। 24 घंटों में सिर्फ बिजली की सप्लाई 2 घंटे होती है, जिसमें भी आंख मचोली का खेल खेला जा रहा है। पहले 24 घंटों में बिजली की तरसील 4 घंटे होती थी, अब बिजली न होने के बराबर है। मुजाहिरीन का कहना है कि फसलें सैराब करना तो दरकिनार बल्कि अब घरों में पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं है। बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग के हवाले से मुजाहिरीन का कहना है कि 18 मेगावाट बिजली गुमलदाम डैम पैदा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपना हक नहीं दिया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि बसूरत दीगर एहतजाज की दायरा वसी कर दी जाएगी, क्योंकि लोयर वजीरिस्तान वाना एक ज़री इलाका है। हुकूमत को यहाँ के बासियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, न कि बर्बादी के लिए। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आ रहा है, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है।
उस्ताद मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शोएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक 11वां सिंध बलोचिस्तान ब्याज शहीद सरदार ज़ादा रुस्तम खान जमाली व मरहूम सरदार ज़ादा नासिर खान जमाली इनविटेशन मोटर बाइक T20 कलर किट व्हाइट हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के सिलसिले का आज एक क्वार्टर फाइनल मैच साले जीम खान क्वेटा बामुकाबला माशाल्लाह क्रिकेट क्लब कनकोट के माबेन मीर अब्दुल नबी खान जमाली पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड रोस्ता मोहम्मद में खेला गया। टॉस जीतकर साले जिम खाना क्रिकेट क्लब क्वेटा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 196 रन बनाए 197 रन का हदफ दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान ने 121 और नकीब उल्ला ने 33 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। माशाल्लाह क्रिकेट क्लब कंदकोट की तरफ से कासिम ने 2 विकेटें हासिल की। 197 रन के हदफ के ताकुब में माशाल्लाह क्रिकेट क्लब कंदकोट की पूरी टीम 170 रन बना सकी। माशाल्लाह क्रिकेट क्लब कंदकोट की जानिब से अयाज अली ने 48, फरहान ने 30 रन और मोहम्मद अकरम ने 24 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। साले जिम खाना क्रिकेट क्लब क्वेटा की जानिब से बाजगुल ने 5 और जल्लाद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। साले जिम खाना क्रिकेट क्लब क्वेटा ने माशाल्लाह क्रिकेट क्लब कंदकोट से 26 रन से जीत लिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस मैच की बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बिस्मिल्लाह खान और बाजगुल के नाम रहा। इस मैच के ऑफिशियल एम्पायर शबीर जान मस्तोई और बाबू रियाज जमाली थे, जबकि ऑफिशियल स्कोर बरात खान पठान थे। इस मैच के मेहमान खसूसी टूर्नामेंट सेक्रेटरी रियाज अहमद आबड़ू थे। रियाज अहमद आबड़ू साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर बिस्मिल्लाह खान और बाजगुल को 500 रुपए कैश इनामात से नवाजा। शुजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिद अफजल खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद अब्दुल बासित सदीकी की हिदायत पर चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ हमरा इन्फोर्समेंट टीम तजावजात के खात्मे के लिए सरगर्म अमल। हुकूमती हिदायत के मुताबिक शहर में तजावजात कायम करने वाले दुकानदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पुराना मुल्तान रोड अल्लाह चौक खोखर अड्डा पर कायम तजावजात का खात्मा करवाया गया। दुकानात के सामने लगे पर्दाजात को उतरवा लिया गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर का कहना था कि तजावजात कायम करने वालों के खिलाफ गुज़श्ता रोज भी कार्रवाइयां की गई थी। दुकानदारान और रेडीबान को तजावजात खत्म करने की डेडलाइन भी जारी की गई थी। जिन दुकानदारान का सामान दुकान से बाहर था, जो कि अवामुन नास के गुजरने में शदीद दुश्वारी का बायस था, सामान मौका पर जब्त कर लिया। तजावजात के खात्मा के लिए ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी और सारी रहेगा। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग मद्दों की रोड पर मुखालफिन ने झगड़े पर घर को आग लगा दी। 38 साल नौजवान झुलसकर जहां बहक जंग मद्दों की रोड पर अहमद चौक के करीब घरेलू तनाजा में जख्मी होने की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। जराये के मुताबिक घरेलू तनाजा की वजह से मुखालफिन ने आग लगा दी। रेस्क्यू 1112 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। आग लगने से मोहम्मद आसिफ वाल्द अब्दुल मजीद 38 साल झुलसकर मौका पर ही जहां बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 एहलकारों ने डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुजफ्फराबाद से हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक डीएफओ राजा मराज सराज ने फौरी नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पंजगोट का जंगलात बेदर्दी से काट कर फरोख्त करने वाले जंगलात के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सादिर फरमा दिया। अवाम ने डीएफओ डिवीजन मुजफ्फराबाद का शुक्रिया अदा किया। ग्रीन जंगलात को बचाने के लिए इधर कुटला रेंज कंपाउंड नंबर 10 से वचरा
نے جنگلات کاٹ کر فروخت کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر بھی چینل 5 نیوز پلس کے کرائم رپورٹر سید بنیاد حسین شاہ نے رپورٹنگ کی اور ڈی ایف او ڈویژن مظفر آباد کو اطلاع دی۔ اس پر بھی فوری نوٹس لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کمپارٹ نمبر 10 کے وچرن نے جنگلات کٹوا کر فروخت کرنے والے تھے۔ کرائم رپورٹر چینل 5 نیوز پلس بنیاد شاہ اکادمی کی رپورٹ پر ڈی ایف او ڈویژن مظفر آباد نے فوری طور پر کارروائی کرنے کا حکم صادر فرما دیا اور رینج آفیسر کوٹلہ راجہ سجیل خان اور بیٹ گارڈ کمپارٹ نمبر 10 نے درخت کاٹے ہوئے تھے جگہ پر ضبطگی کر کے قانونی کارروائی کرنے کے لیے ڈی ایف او ڈویژن کو رپورٹ پیش کر کوٹ ابو سے ہماری ڈپٹی بیورو چیف مسکان چودھری کی رپورٹ کے مطابق ایک اور چور گینگ متحرک، بجلی ٹرانسفارمر چوروں نے پورے ضلع میں ات مچا دی۔ چور ایک ہفتہ میں درجنوں بجلی کے ٹرانسفارمر لے اڑے۔ گزشتہ دنوں نور شاہ تلائی سے ٹرانسفارمر چور عوام کے ہتھے چڑھے تھے، خوب درکت کے بعد حوالہ پولیس کر دیا گیا۔ ٹرانسفارمر چور پکڑے جانے کے بعد بھی ٹرانسفارمر چوری کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ گزشتہ رات چور بستی نورے والا پتل روڈ سے 2 بجلی کے ٹرانسفارمر اتار کر قیمتی سامان لے اڑے۔ اطلاع ملنے پر پولیس دائرہ دین پناہ اور متعلقہ ایس ڈی او موقع پر پہنچ گئے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اہل محلہ کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ اہل محلہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے۔ خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ جنگ سے ہمارے بیورو چیف محمد اشرف سیالوی کی رپورٹ کے مطابق شمس و قمر فاؤنڈیشن آستانہ عالیہ سیال شریف کے انتظام دوسرے فری آرتھو پیڈک کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ جنگ سے اپڈیٹ کریں محمد اشرف سیالوی جی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، شمس و قمر فاؤنڈیشن کے تحت جنگ میں دوسرے فری آرتھو پیڈک کیمپ کا انعقاد۔ جنگ کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال علی احمد خان میں شمس و قمر فاؤنڈیشن آستانہ عالیہ سیال شریف کے زیر انتظام دوسرے فری آرتھو پیڈک کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنگ کے مایہ ناز آرتھو پیڈک سرجن ڈاکٹر کیسر ندیم علیانہ نے مریضوں کا مفت چیک اپ کیا، جس سے مریضوں کی کثیر تعداد نے استفادہ حاصل کیا۔ کیمپ میں یورک ایسڈ، کیلشیم کی کمی اور ہڈیوں کے بربرا پن کے مفت ٹیسٹ کیے گئے اور مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئی۔ فاؤنڈیشن کے مرکزی کوارڈینیٹر ہیلتھ ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی کیمپ میں موجود رہے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری و فائنانس فضل حیدر سیالوی نے کیمپ کا آن لائن وزٹ کیا اور چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب کو کیمپ کی تفصیلات پیش کی، جس پر چیئرمین صاحب نے ڈاکٹر کیسر ندیم علیانہ کی کیمپ کے حوالے سے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت پیشہ پیغمبری ہے۔ ڈاکٹر کیسر ندیم علیانہ جیسے فرشتہ صفت ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہے۔ باقی ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹر کیسر ندیم علیانہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرے، جس سے بہت سے مجبور لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے۔ خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے زیر اہتمام الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی بھوانا سے امی پور تک نکالی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے زیر اہتمام الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی بھوانا سے امی پور تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت پیرزادہ محمد قاسم سیالوی اور مار محمد حسین منظور نے کی۔ تاہم شہریوں نے ریلی کے شرکا پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے غریب شہریوں کا جینا محال ہے۔ ملک کو تمام بحرانوں سے نکالنے کا واحد ایک ہی حل ہے اور وہ صرف الیکشن ہے۔ جتنے بھی میرے پیارے بھائی بزرگ سب جو آج تشریف لائے ہیں، خصوصاً میں پیر حضور قاسم سیالوی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی اور ہمارے علاقے کو اور ہمارے حلقے میں رونق بخشی۔ ہم پی ٹی آئی کے ٹائیگر کا ثبوت دیتے ہوئے الیکشن کراؤ مہنگائی مکاؤ کا بھرپور عوام نے جو آج ریفرینڈم انعقاد کیا ہے، جو ریلی نکالی ہے، اس میں عوام کی بھرپور شرکت نے یہ جواب دے دیا ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف ایک الیکشن ہی حل ہے۔ ہم کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، اور انشاءاللہ ہم پیر قاسم صاحب کی سیالوی صاحب کے حمایت سے اس حلقے میں بھرپور پی ٹی آئی کی بھرپور حمایت کریں گے، اور جس کو بھی جو ٹکٹ ملے گا پی ٹی آئی کی طرف سے ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ آج ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو خان صاحب نے شروع کی ہے کہ ہمیں الیکشن کرانا ہے، اور یہ الیکشن ہی ہمارے ملک کی اس وقت بگڑی ہوئی اور خستہ حالی اور بے حد ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے اس کو نکلنے کے لیے، اس سے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی واحد حل ہے تو وہ الیکشنز ہیں، جلد از جلد ہونے چاہیے، صرف اپنے کیسز کو ختم کروانے کے لیے۔ اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جو کنوکٹڈ مجرم تھے جن کے اوپر سزائیں عدالتوں نے سنا دی ہوئی تھیں، وہ ہمارے ملک میں آئے اور آ کر وزیر اعظم بن گئے، منسٹرز بن گئے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے۔ خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے، اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ چشتیہ سے ہمارے بیورو چیف اسلم مرشد کی رپورٹ کے مطابق سالانہ عرس مبارک تاجدار آستانہ عالیہ پٹی شریف حضرت پیر سید خادم حسین شاہ گیلانی قادری نوشاہی سچیاری پٹی شریف والے خصوصی آمن مرشد گرانہ اولاد سچیات پاک حضرت پیر سلطان شاہد ربانی سرکار زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوشہرہ شریف حضرت پیر سلطان میرا سرکار جانشین درگاہ نوشہرہ شریف بطریق 3 فروری بروز جمعۃ المبارک محفل میلاد ختم پاک چادر پوشی محفل سما زیر نگرانی پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف پیر سید لال شاہ گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ پٹی شریف زیر انتظام پیر سید وقاص شاہ گیلانی صاحبزادہ پیر سید فیصل گیلانی قوال انٹرنیشنل شہباز حسین فیاض حسین رات 9 بجے۔ مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے، ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں۔ اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں۔ اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔
सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और सुन्नी एक्शन कमेटी सियालकोट के जेर एहतमाम शफीदा भट्टा मोहल्ला निजामाबाद जफरवाल रोड से जामिया मस्जिद अब्दुल्ला तक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरा के सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत इजाज कादरी और जिलाई सदर जहांगीर कादरी की हिदायत पर किया गया। रैली में सियासी समाजी मजहबी वकला ताजर साफी बरादरी समेत अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे और सख्त इल्फाज में नारेबाजी। मुजाहिरीन ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट के सीनियर तहसील रहनुमा मलक आमिर इकबाल कादरी और सदर हल्का PP 38 अलियास कादरी ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर मुस्लिम ममालिक मिलकर बीन अल-अक़वामी कानून साजी करें ताकि कुरान पाक की बेहुरमती को रोका जा सके। इलामा कारी इस्लाम ने कहा, कुरान पाक हमारी रेड लाइन है, कुरान पाक को नजरे आतिश करना खुली दहशतगर्दी है, हुकूमत को सख्त एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिटी सदर शहजाद कादरी ने कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ भरपूर मजम्मत करते हैं। रैली के इख्तिताम पर स्वीडन के झंडे को नजरे आतिश किया गया और मुल्को कौम की सलामती के लिए दुआए खैर भी की गई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मेरा मुराद जमाली इंसाफ मीडिया सेंटर नसीराबाद तारिक जान कटवार की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा मुराद जमाली में एक दफा फिर PCO वाले गरीबों से कटौती करने में सरगर्म हो गए। सावन PCO के ऑनर मुल्ला अरबाब और नाना सोलंगी जो खुद को डेरा का बदमाश और डॉन कहला रहा है, अपने साथ 8-10 बदमाश लड़के भी डंडों के साथ बिठाए हुए रहता है। हमारे एक साफी ने कटौती के बारे में पूछा तो उसने बोला कि बिल्कुल मैं कटौती कर रहा हूं, मुझे कौन रोकेगा। साफी ने बोला कि ये कंप्लेंट DC के पास जाएगी तो उसने बोला मैं सबको जानता हूं, DC क्या, DC जैसे लोग मेरे पास आए रोज हाजिरी देते हैं, जो करना है करो, मैं कटौती करूंगा। इतना बदमाश जो अफिसरान को भी धमकियां दे रहा है, क्या हमारे अफिसरान इन जैसे बदमाश लोगों के आगे कमजोर हैं जो गरीबों का हक खाने में फख्र महसूस करते हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो गरीब आवाम के पैसे खा रहे हैं। आला अफिसरान से इस बदमाश PCO वाले की बदमाशी और कटौती का फौरन नोटिस लिया जाए और गरीबों के चंद रुपए कटौती होने से बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। इकबाल से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई से पिसी अवाम पर पेट्रोल बम के वार। पेट्रोल डीजल हाई ऑक्टेन मट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने महंगाई से पिसी अवाम पर एक और वार कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने वफाकी दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा किया गया है। मजीद उनका कहना था कि मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए का इजाफा किया गया है। इसहाक डार का मजीद कहना था 35 रुपए के इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। 18 रुपए के इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 199 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 187 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अवाम ने इन कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। पेश है स्वैबा जुशांदा, जो बना 7 जड़ी बूटियों के असल मुरक्कब से 100% नेचुरल। हो नज़ला या जुकाम, स्वैबा जुशांदा से फौरी आराम। स्वैबा जुशांदा, अ प्रोडक्ट ऑफ स्वैबा फूड्स।
हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शार कमाल सदीकी ने बतौर रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा का चार्ज संभाल लिया। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करते चले, DIG शार कमाल सदीकी ने RPO सरगोदा का चार्ज संभाल लिया। RPO ऑफिस सरगोदा आमद पर SPR IB आसिफ मसूद, ADIG आमिर मुश्ताक, DSP लीगल सनाउल्लाह खान और दीगर पुलिस अफसरान ने इनका पुरतकाब इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO सरगोदा ने ADIG आमिर मुश्ताक को इंतजामी व सिक्योरिटी अमूर मजीद बेहतर बनाने के हवाले से अहकामात जारी किए। RPO सरगोदा शार कमाल सदीकी ने चार्ज संभालने के बाद RPO ऑफिस की तमाम ब्रांचेज का विजिट किया। RPO ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेज के इंचार्ज ने अपनी ब्रांच की वर्किंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर RPO सरगोदा शार कमाल सदीकी ने मातहत अमले को अहकामात जारी करते हुए कहा, लोगों के मसाइल हल करने और उनकी शिकायत के अजाला के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात बरूए कार लाएं और खुद एहतसाबी के अमल को इख्तियार किया जाए। अपने अंदर फर्ज शनासी और जिम्मेदाराना रवैया पैदा करें ताकि सर्विस डिलीवरी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाए। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमनो अमान का क़याम पुलिस की अवलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। RPO सरगोदा शार कमाल सदीकी का मजीद कहना था, पुलिस अफसरान व एहलकार खुश इखलाकी से पेश आए, खिदमात की फराहमी के दौरान बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करें, हिम्मत खल्क को अपना शहार बनाए, अवाम के मसाइल हल होंगे तो पुलिस के वकार में इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा रोड पर जंग सिटी बंद के करीब एक कार में आग लगने की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। जराये के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। रेस्क्यू की टीम जाए हादसा पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त रिस्पांस देकर फायर फाइटिंग शुरू कर दी और रेस्क्यू की टीम ने आग पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया, जिससे किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए